میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ سسرال ایک خطرناک جگہ ہے جہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، لیکن اپنے سسرال آ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے سسرال والے تو بہت اچھے لوگ تھے۔ میری ساس نے کہا تھا کہ شادی کے شروع دن اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزارو، اس کے بعد تمہیں ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مجھے اس گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرا شوہر وسیم بھی ایک اچھا انسان تھا اور وہ بھی میرا پوری طرح خیال رکھتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی جب میں نے کمرے سے نکلنا شروع کیا، بہت ہی زیادہ عجیب و غریب منظر دیکھا جسے دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ پورا گھر اچھے سے اچھا کھانا کھاتا اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا، لیکن گھر کا سربراہ ہی دو دن پرانا بدبودار کھانا کھاتا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی پہلی دفعہ میں دسترخوان پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھی اور سارے گھر والے ایک ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر کو دسترخوان پر جگہ نہ دی جاتی۔ میری ساس نے پیچھے کی طرف پڑے پلنگ پر ہی ایک پلیٹ میں کھانا پہنچا دیا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بہت زیادہ بدبودار روٹی کے ساتھ 2 دن پرانا بچا ہوا سالن ان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ مجھے اپنے سسر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسرال والے تو اتنے پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں، پھر میری ساس کیوں میرے سسر کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کرتی ہیں۔ رات تو انہوں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا اور اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کی، لیکن اگلے دن جب دوپہر کے کھانے پر میں نے دوبارہ اسی طرح سسر کو رات کا بچا ہوا کھانا کھاتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ باقی سب تو تازہ کھانا کھا رہے تھے، پھر سارا بچا ہوا کھانا بھلا میرے سسر کے حصے میں کیوں آتا تھا؟ شاید میرے سسر کو بدبودار کھانا پسند تھا، لیکن جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی تو مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ بہت مجبوری میں اور بہت مشکل سے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے گھر کے سبھی لوگوں کی طرف ڈالی، جس میں میری 2 نندیں اور ایک دیور شامل تھا، اور میری ساس بھی دسترخوان پر ہی موجود تھی، لیکن وہ سبھی بہت اطمینان سے کھانا کھا رہے تھے اور کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ان کا باپ بدبودار کھانا کھا رہا ہے، جبکہ میں نے اپنے گھر میں یہی دیکھا تھا کہ امی ہر اچھے سے اچھی چیز پہلے ابو کے لیے علیحدہ کر کے رکھتی۔ دسترخوان پر جب میرے ابو آ کر بیٹھا کرتے تو سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے۔ ہم سب بہن بھائی سب سے پہلے کھانا نکالنے کے لیے ڈش کو ابو کے آگے کرتے اور پھر ہم بہن بھائی کھانا لیتے۔ ہمارے گھر کے دسترخوان کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا۔ سسرال کا ماحول دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ یہاں میرے سسر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور صرف میری ساس ہی نہیں بلکہ ان کے بچے بھی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے تھے اور سب اپنے کھانے میں مشغول رہتے۔ شروع میں تو 10-15 دن میں خاموشی سے اسی ماحول کا حصہ بنی رہی، کیونکہ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس بارے میں گھر میں کسی سے بھی کوئی سوال کرتی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب میں گھر کے ماحول میں پوری طرح ڈل گئی اور سب لوگوں سے میری بات چیت بہتر ہونے لگی تو میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کا باپ اتنا زیادہ بدبودار کھانا کھائیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر تازہ اور گرم گرم روٹی توڑیں۔ یہ سن کر نرم مزاج وسیم اچانک ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے اور بہتر ہے کہ تم میرے ماں باپ کے معاملے میں نہ بولو۔ اگر تمہیں اس گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے تو تم مجھ سے اس کے بارے میں بات کر سکتی ہو، لیکن میرے ماں باپ کے حوالے سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کے ذاتی معاملات ہیں۔ وسیم کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں بھی تو اسی گھر کی تھی، لیکن انہوں نے کتنی آسانی سے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ ان کے گھر کے ذاتی معاملات ہیں، یعنی اس گھر کے معاملات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں اب خاموشی سے چلتے پھرتے صرف اپنے سسر کی طرف دیکھتی رہتی اور میرا دل یہ دیکھ کر عجیب سے اداسی کا شکار ہو جاتا کہ میرے معصوم اور بے ضرر سے سسر جو کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے اور سارا دن خاموشی سے پلنگ پر بیٹھے رہتے تھے، انہیں ہر کھانے میں صرف اور صرف باسی کھانا ہی دیا جاتا تھا۔ ان کے پاس پہننے کے لیے بھی 2 ہی جوڑے موجود تھے، کیونکہ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں نے انہیں 2 جوڑوں میں دیکھا تھا، جبکہ اس گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی اور اپنی نندوں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ بیٹیاں تو بابا کی لاڈلی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے ہی ہوتی ہے۔ یقیناً ان کے باپ کے ساتھ ان کی ماں کا رویہ کس حد تک خراب ہے، گھر کا بڑا ہونے کے باوجود بھی انہیں مناسب کھانا بھی کھانے کو نہیں دیا جاتا۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات بھی بہت حیران کرتی
कि मेरी सास का रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, जबकि मैं उनकी बहू थी। अच्छे से अच्छा खाना हो या फल, सबसे पहले मुझे ही पूछती, तो फिर अपने शौहर के साथ वो इस तरह का सलूक क्यों करती थी? हर बात पर वो मेरे ससुर को झिड़कती थी और बहुत बुरा भला भी कहती। उनको बदबूदार खाना देते और पहनने के लिए भी मेरे ससुर के पास एक ढंग का जोड़ा नहीं था। और फिर सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि जब मेरी नंद का रिश्ता आया तो मेरी सास ने मेरे ससुर को घर से बाहर भेज दिया। यहाँ तक के रिश्ते वाले आकर चले गए। मेरी नंद का रिश्ता भी पूरी तरह तय पा गया, लेकिन मेरे ससुर को उन लोगों से बिल्कुल ही मिलने नहीं दिया था। मैंने बातों बातों में एक दफा अपनी सास से कहा कि मारिया के ससुर वाले अभी तक अब्बा जान से नहीं मिले हैं। ये सुनकर मेरी सास ने बहुत अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी कि मारिया का रिश्ता हो गया है और अब उसकी शादी होने वाली है। शादी वाले दिन तुम्हारे अब्बा जान उन लोगों को देख ही लेंगे। ये सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लड़की का बाप शादी वाले दिन ही अपने होने वाले दामाद को देखेगा। मारिया की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे ससुर के साथ सबका रवैया वैसा ही था। मैंने मारिया से भी कहा कि अब्बा जान के साथ ऐसा सलूक क्यों होता है और तुम लोग क्यों कुछ नहीं कहते। ये सुनकर मारिया ने मुझे वही जवाब दिया जो वसीम ने दिया था कि ये अम्मी और अब्बा जान का आपस का मामला है। बेहतर यही है कि भाभी आप इस मामले से दूर रहें। आपके हक में यही बेहतर है, वरना अगर अम्मा जान को पता चल गया कि आप इस मामले में दखल दे रही हैं तो हो सकता है कि उनका रवैया आपके साथ खराब हो जाए। मारिया की बात सुनकर मैं एकदम खामोश हो गई। मारिया वाकई ठीक ही कह रही थी। अगर अम्मा जान मुझे अपना दुश्मन मान लेती तो हो सकता था वो मेरे साथ अब्बा जान से भी बदतर सलूक करती, क्योंकि अब्बा जान तो उनके शौहर थे, फिर भी वो इसे बिल्कुल नहीं बख्शती थी, जबकि मैं उनकी बहू थी। दोपहर के खाने के बाद मेरी सास को अचानक से बाजार जाना पड़ा। मारिया की शादी की तैयारियों की वजह से अम्मा जान के हर रोज ही बाजार के चक्कर लगने लगे थे। जब मैंने देखा कि घर में मेरे और अब्बा जान के अलावा कोई नहीं है, तो मैंने खामोशी से सारा बचा हुआ खाना छत की मंडेर पर डाल दिया, ताकि बदबूदार खाना बचे ही ना और अब्बा जान को वो खाना ना खाना पड़े। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और इसका खमियाजा भी मेरे ससुर को ही भुगतना पड़ेगा। बाकी खाना छत पर डालने के बाद मेरा दिल मुतमईन हो गया था और मैंने सारे बर्तन धोकर बावर्ची खाना पूरी तरह साफ कर दिया और रात का खाना पकाने में मसरूफ हो गई। मेरी सास मारिया और मेरी छोटी नंद को लेकर बाजार गई हुई थी। मैंने उनके आने से पहले ही रात का खाना भी बना लिया और घर भी साफ सुथरा कर दिया। मुझे यकीन था कि आज मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए पका है, क्योंकि अब तो ससुर को खराब खाना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के दस्तरखान पर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं जब मैंने अपने सास को ससुर को खाना देते हुए देखा। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी सास इस हद तक भी जा सकती है। अपने ससुर के साथ ऐसा सलूक देखकर मेरे हलक से एक नवाला भी नीचे न उतरा और मैं खामोशी से दस्तरखान से उठ गई। वसीम ने महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन वो सबके सामने खामोश रहे और जब मैं कमरे में सारा काम खत्म करके आई तो मुझे अपने पास बुलाकर पूछने लगे कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। मुझे खावंद के ऊपर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो कैसे अपने बाप के साथ ऐसे सलूक बर्दाश्त कर रहे थे। अचानक ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने वसीम से कहा कि मुझे डर लग रहा है कि मेरा भी बेटा कहीं आप जैसा ना हो जो आपको एक एक नमाले के लिए तरसा दे। ये सुनकर वसीम हक्का बक्का रह गया कि मैं क्या कह रही हूँ। वसीम ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने वसीम की तरफ एक भरी नजर डाली और रोते हुए कहा कि जब आप अपने बाप के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके ऊपर होने वाले जुल्म को देखकर भी अपनी आंखें बंद रख सकते हैं, तो भला आपकी औलाद आपके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती? ये सुनकर वसीम ने मुझे कहा, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम खामोशी से सो जाओ। जब किसी चीज के बारे में इल्म ना हो तो उसके बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए। वसीम अपनी बात पूरी करके सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे आग जल रही थी। मुझे सोच सोच कर होल उठ रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने हमसे इसका हिसाब ले लिया तो हम क्या जवाब देंगे, और अगर मेरी औलाद भी वसीम के साथ यही सलूक करेगी तो तब वसीम क्या करेंगे? क्योंकि मकाफाते अमल भी एक हकीकत है और जो कुछ हम बोएंगे वह हमें वही सब कुछ काटना भी पड़ेगा। मैंने सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारी थी। मुझ पर सुकून नहीं आ रहा था। जब से मैंने रात के दस्तरखान से ये देखा था कि मेरी सास ने मेरे ससुर को प्लेट में 2 कच्चे गोश्त की बोटियां
और कच्चा आटा डालकर सामने रख दिया तो मेरी जान ही निकल गई थी। साथ साथ वो मेरे ससुर को बहुत ज्यादा बुरा भला भी कह रही थी, और बाकी सब बच्चे आराम से खाना खाने में ऐसे मशगूल थे जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। उसके साथ ही वो अपने शौहर को कह रही थी कि तुम्हें ताजा खाने का बहुत शौक उठता है ना, तो ये लो, बिल्कुल ताजा ताजा खाना खाओ। तुमने जानबूझकर बदबूदार खाना छत पर डाल दिया, अब तुम्हें इससे पेट भरना पड़ेगा। मेरे ससुर उस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। खाना इन्होंने नहीं बल्कि मैंने छत पर डाला था, और अब इस बात की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को उस वक्त ये बताती कि बदबूदार खाना मैंने छत की मंडेर पर डाला है। लेकिन मेरे अपने हलक से भी एक नवाला नीचे नहीं उतर रहा था। जैसे तैसे मेरी रात गुजारी थी, और सुबह होते ही मैं कमरे से निकली तो मेरे सामने ही सेहन में मेरे ससुर टूटे हुए पलंग पर नमाज अदा कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उनकी नमाज खत्म हुई तो वो मुझे देखकर बहुत शफकत से पूछने लगे कि क्या बात है बेटी, आज इतने सवेरे सवेरे कैसे उठ गई। ये सुनकर मेरी आंखें फिर से भीगने लगी, और मैंने उन्हें बताया कि बाकी खाना मैंने छत की मंडेर पर डाला था ताकि उन्हें बुदबुदार खाना ना खाना पड़े। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस अमल की वजह से वो खाना खाने से ही महरूम रह जाएंगे। मैंने उनसे माफी मांगनी थी। मेरे ससुर ने फौरन ही मेरे हाथों को हटा दिया और कहने लगे कि बेटी, इसमें माफी की क्या बात है, तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन मेरे नसीब में अब सारी उम्र खराब खाना ही लिखा है। आज मुझे इस बात पर भी बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि इतनी ठंड के मौसम में मेरे ससुर खुले आसमान के नीचे पलंग पर क्यों सोते हैं, जबकि मेरी सास अपने कमरे में आराम से सो रही थी। मैंने अपने ससुर से हिम्मत करके पूछ ही लिया कि अब्बा जान, आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी औलाद को भी आपका एहसास नहीं, और अम्मा जान भी आपके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करती हैं। घर में सब ताजा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 2 दिन पुराना बदबूदार खाना ही क्यों दिया जाता है। अब्बा जान मेरी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे खुशी है कि मेरी बहू को मेरा इतना ज्यादा ख्याल है, लेकिन तुम्हारी सास मेरे साथ बदसलूकी नहीं करती, और ना ही मेरे बच्चे बुरे हैं, बल्कि मैं वही सब कुछ भुगत रहा हूँ जो मैंने बोया था। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्हें अपनी बीवी और बच्चों से कोई शिकवा क्यों नहीं था, जबकि उनकी हालत देखकर तो मेरा अपना दिल जलता था। सर्दी शदीद हो रही थी और अभी तक कोई अपने कमरों से नहीं निकला था। मैं शॉल लपेटे अपने ससुर के पास ही बैठ गई थी जब वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ बताने लगे, जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि जब उनकी मेरे सास से शादी हुई तो इन दोनों की उम्र के दरमियान काफी फर्क था। मेरी सास एक 16 साल की कम उम्र लड़की थी, जबकि मेरे ससुर 32 साल के थे। मेरे ससुर बताने लगे कि उनकी माँ ने जानबूझकर उनकी शादी बहुत ज्यादा देर से करवाई, क्योंकि वो घर में अकेले कमाने वाले थे और 6 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी माँ ने पहले उनकी कमाई से पूरा घर खड़ा किया और अपनी बेटियों के रिश्ते किए। इसके बाद उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर की माँ ने जानबूझकर एक कम उम्र लड़की को मेरे ससुर के लिए मुंतखब किया ताकि वो इसे दुबा कर रख सके। मेरे ससुर ने बताया कि जब तेज सास ब्याह कर इनके घर आई तो पहले दिन से ही अपनी सास के मुजालिम का शिकार हो गई। उनकी सास उन्हें खाना तक नहीं देती थी और सारा खाना अपनी बेटियों के घर भिजवा दिया करती, और मेरी सास के हिस्से में हमेशा बचा कुचा और बदबूदार खाना ही आता। लेकिन मेरी सास ने कभी उफ तक न किया, और मेरे ससुर ये सारे जुल्म देखकर भी अपनी माँ की खातिर खामोश रहते। मेरी सास सिर्फ 17 साल की थी जब उनके यहाँ वसीम की पैदाइश हुई। मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी घर की तमाम जिम्मेदारियां उनके सर पर थीं, और मेरे ससुर की सारी बहनें आकर उन्हें मजीद परेशान करती। मेरे ससुर की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीवी को एक वक्त का ढंग से खाना भी नहीं खिला सकते थे, जबकि इनकी बहनें जब रहने के लिए आती तो उनके लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनता, और मेरी सास सारा वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ रहती, और आखिर में उनके लिए खाना खाने के लिए एक नवाला भी न बचता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी सास कभी ससुर से कोई शिकायत न करती, लेकिन वसीम के साथ होने वाले 2 बच्चे उसकी खराब सेहत की वजह से पैदाइशी तौर पर मुर्दा पैदा हुए, जिसकी वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर पड़ गई। जब वो काम करने के काबिल थी तब लोगों ने उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो काम करने के लिए काबिल न रही तो वसीम की दादी ने मेरी सास को एक कमरे में डालकर छोड़ दिया
और उन्हें खाना भी वक्त पर न दिया जाता। मेरे ससुर की 6 बहनें मेरे ससुर की कमाई पर ऐश कर रही थी, जबकि उनकी अपनी बीवी ही भूखी थी। दिन ब दिन मेरी सास बीमार होती जा रही थी। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। वो दूसरे शहर से शादी करके आई थी और उनके माँ बाप ने भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं पूछा था। उसके बाद मेरी सास ने 2 और बेटियों को मजीद जन्म दिया और उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। एक दिन वसीम की दादी ने मेरी सास पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरे ससुर को मजबूर कर दिया कि वो वसीम की माँ को तलाक दे दे, और इस तरह इन्होंने बहुत मजबूर होकर वसीम की माँ यानी मेरी सास को तलाक दे दी। अपने ससुर की ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी सास ससुर अब मियाँ बीवी नहीं है। ये बात तो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम न थी। अपने शोहर से तलाक लेने के बावजूद भी मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा। वो पहले ही नौकरानियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी, अब तो उनकी हैसियत मट्टी बराबर भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत बुरे हालात में जिंदगी गुजारना शुरू की और फिर देखते ही देखते कुछ सालों में मेरे ससुर की अम्मा का इंतकाल हो गया। और जब मेरे ससुर रिटायर हुए तो इनकी बहनें भी सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गई, क्योंकि अब इनके भाई के पास उन्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं था। इतने सालों में वसीम काफी बड़ा हो गया था और उसने अपनी माँ पर होने वाले तमाम मजालिम को अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर्ड होने के बाद वसीम ने नौकरी शुरू कर दी और यूं छोटी मोटी नौकरियां करके उसे अपनी तालीम के साथ साथ घर के खर्चे को भी चलाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता घर में वसीम और उसकी माँ का पलड़ा भारी हो गया और मेरी हैसियत वही हो गई जो वसीम की माँ की थी। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता चला गया था और हालात पूरी तरह बदल गए थे। अब मैं मजबूर हो चुका था कि मैं वसीम की माँ के रहमो करम पर पड़ा रहता, क्योंकि मुझे पूछने वाला अब कोई नहीं था। हम दोनों की तलाक हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वसीम की माँ इसी घर में थी। पहले उसके लिए मजबूरी थी कि वो इस घर में रहती, और अब ये मेरी मजबूरी बन गई थी कि मैं उसे इस घर से नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे को लेकर चली जाती तो मैं तन्हा रह जाता और इस बड़े से घर में अकेला क्या करता। मेरी तो उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे और वसीम की माँ के दिल में भी मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उसके साथ गुजारे उस पर कभी रहम नहीं खाया, बल्कि हमेशा अपनी माँ का ही साथ दिया और अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता था। और मैंने वसीम की माँ पर हमेशा अपनी बहनों को फोकियत दी। जब मैं अपनी बहनों को पैसा नहीं दे पाया तो वो सब मुझे छोड़कर चली गई। इस वक्त मुझे सही मायनों में एहसास हुआ कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। अगर मैं अपनी बीवी को उसका सही मुकाम देता जिसकी वो हकदार थी, तो मैं भी अपने असल मुकाम पर फाइज होता। मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करते, मेरी इज्जत करते, मेरी बीवी मुझे अपना सर का ताज बनाकर रखती। लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से हर रिश्ते को बर्बाद किया। अपनी आंखों के सामने सब कुछ गलत होते हुए देखा, कभी रोकने की कोशिश ना की, जिसका नतीजा मैं आज भुगत रहा हूँ। इसमें वसीम की माँ की कोई गलती नहीं है। उसने सारी जिंदगी एक एक नवाले के लिए तरस कर गुजारी है, और आज वो मुझे भी वही अजियत दे रही है जिससे वो गुजर को यहाँ तक पहुंची है। और मैं भी यही सोचकर ये अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हो सकता है इस तरह मेरी माफी दुनिया में हो जाए और आखिरत में मुझे इस बात का जवाब न देना पड़े कि मैंने अपनी बीवी के साथ कैसे इतना बुरा सलूक किया। मेरे ससुर अपनी सारी जिंदगी की आपबीती सुनाकर खामोश हो गए थे, लेकिन मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा कैसे है। इन्होंने जितनी भी तकलीफ देखी थी वो मुझे इस सब से बहुत दूर रखना चाहती थी। अपने घर से ज्यादा सुख और सुकून मुझे मेरी सास ने इस घर में दिया था। जैसे जैसे दिन का उजाला फैल रहा था, सब अपने अपने कमरों से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके वर्ची खाने में चली गई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। एक नए दिन में मेरे ससुर अपने किए पर शर्मिंदा थे, और अब मुझे यही कोशिश करनी थी कि आने वाले वक्तों में किसी तरह उन्हें माफी दिलवा देती। खुदा भी अपने बंदे को 1000 गुना माफ कर देता है, तो हम इंसान क्यों एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं कर सकते। आज जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरी तरह एहसास हो चुका था, तो मैं चाहती थी कि मेरी सास भी इन्हें माफ कर दे। इनके दरमियान अब कोई इज़्दिवाजी रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उनके दरमियान उन दोनों की औलाद थी, जिसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए यह जरूरी था कि घर के बड़ों को इज्जत दी जाए।